چراغ ہے میرے پیراں لے کلام تیرا. لوگوں کے پاس بائبل مقدس موجود ہے. آپ مجھے کہیں گے جی ہمارے پاس موبائل میں ایپ موجود ہے. اس کے لیے خدا کا شکر. لیکن جب تک ہمارے پاس ہارڈ کاپی موجود ہے کتاب کی صورت میں، اس کو اٹھانے اور لانے سے گریز نہ کیا کیجیے. موبائل میں آپ نے اور بڑا کچھ رکھا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ایپ وہاں جچتا نہیں ہے. بائبل اٹھانے سے نہ شرمائیں، یہ آپ کو اتنا اٹھائے گی کہ آسمان کے ستاروں کی طرح روشن کر دے گی. مقدس مرقس کے مطابق انجیلی بیان اس کا 13واں باب 32ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا شروع کروں گا 37ویں آیت کے آخر تک. مرقس کی معرفت انجیلی بیان 13واں باب 32ویں آیت سے، اور آج صبح کلام کی جو سچائی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جس کا بوجھ میرے دل پر ہے، وہ ہے مسیح کی آمد کی تیاری. تو آئیے کلام پڑھیں. یہ مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں. لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا مگر باپ. خبردار، جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا. یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا، اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا، یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا، اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے. پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو، یا مرغ کے بانگ دیتے وقت، یا صبح کو. ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے. اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو. دوسری تلاوت مقدس لوکا کے مطابق انجیلی بیان 21واں باب 29ویں آیت سے ہم پڑھیں گے، اور یہ آج صبح کے لیے ہماری مین ٹیکسٹ بھی ہے. لوکا طبیب کے مطابق انجیلی بیان اس کا 21واں باب 29ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو، جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے. اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو، اور یہ سارا باب مسیح کی آمد کے نشانات سے بھرا ہے. مسیح نے کہا جب تم ان سب باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں
یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائے، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد یا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، یہ مسیحی ایمان کی اوج، کلائمیکس، بیوٹی، گلیمر اور گلوری اور مبارک امید ہے۔ اس تعلیم یا ڈاکٹرائن کا شمار مسیحیت کی بنیادی دینیاتی تعلیمات میں ہوتا ہے جن کے بغیر مسیحی ایمان تکمیل کو نہیں پہنچتا، مکمل نہیں ہوتا، کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور نہ ہی نجات کے منصوبے کی تکمیل ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی دوبارہ آمد دنیا بھر کے تمام مسیحیوں کے لیے دی گریٹسٹ گڈ نیوز ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، اور دنیا کے تمام گنہگاروں کے لیے، ابلیس کے لیے، عالم ارواح اور اس کی قوتوں کے لیے یہ بیڈ نیوز ہے، بری خبر ہے، تھریٹ ہے، لیکن میرے لیے، آپ کے لیے، ہم جو اس کے لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ خوشی کی خبر ہے کہ یسوع آنے والا ہے۔ عہد عتیق کے سکولرز وہ عہد عتیق میں سے 1845 حوالوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن میں مسیح کی دوبارہ آمد کا ذکر موجود ہے، اور جو مسیح کی دوسری آمد سے ریلیٹڈ ہے، وابستہ ہے۔ پرانے عہد نامے کی کتابوں میں سے 17 سے زیادہ کتابیں اس عظیم پیغام سے روشناس کراتی ہیں اور ہمیں اس کی طرف لے جاتی ہیں، ہماری توجہ اس بڑے ایونٹ کی طرف لے جاتی ہے۔ عہد جدید کی 27 کتابوں میں سے 23 کتابوں میں خداوند کی دوسری آمد کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ نئے عہد نامے کے ہر ایک 10 ابواب میں سے 7 ابواب میں ہمیں مسیح کی دوسری آمد کا ذکر ملتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ساری بائبل میں تقریباً 1800 سے زیادہ مرتبہ مسیح کی دوبارہ آمد کا ذکر ہے۔ 300 سے زائد مرتبہ عہد جدید نیا عہد نامہ مسیح کی آمد کا ذکر کرتا ہے۔ مطلب ہر 25 آیات میں سے ایک آیت وہ اس خوشخبری کی طرف دھیان لگواتی ہے کہ یسوع آنے والا ہے۔ اور یہ ساری کیلکولیشنز جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کلیسیا اس بات کو ریئلائز کرے،
ईमानदार इस हकीकत से रूशनास हो जाए कि यीशु बहुत जल्द आने वाला है। बल्कि अब अगर ये कहा जाए कि वो दरवाजे पर खड़ा है, या हम आसमान की बादशाही के इस्तकबालिया में रिसेप्शन में खड़े हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। अहद जदीद में ना सिर्फ मसीह की आमद का जिक्र है, बल्कि अहद अतीक की पेशन गोइयों का ये हुस्न है, जीनत है, जमाल है। सारी बाइबल का पैगाम है कि यीशु दोबारा आने वाला है। किसी शख्स ने कहा है कि सारी बाइबल में मसीह के बेशकीमत लहू का जिक्र एक रेड कॉर्ड या एक सुर्ख डोरी के तौर पर मौजूद है, और मसीह की दोबारा आमद का जिक्र सारी बाइबल में गोल्डन कॉर्ड या सुनहरी एक डोरी की मानिंद मौजूद है। जब हम अनजीले अरबा में खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर गौर करते हैं, तो मसीह खुदावंद ने अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में, जमीनी खिदमत में अपनी दूसरी आमद की बाबत बड़ी तालीम दी है। और ना सिर्फ आमद की बाबत तालीम दी है, बल्कि मसीह ने अपने आने की नेचर, उसके निशानात और उसकी तैयारी की बाबत भी ईमानदारों को तालीम दी है। खुदा का बंदा मुकद्दस मत्ती रसूल अपने इंजीली बयान के 26वें बाब उसकी 23वीं आयत से 24वीं आयत, दोनों आयत में जिक्र करता है उस वक्त का जब मसीह खुदावंद अपने मुकदमा के ट्रायल के लिए सरदार काहिन के सामने खड़ा था। तो उसने मसीह से ये कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं, अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। सरदार के इस सवाल पर मसीह का रद्द अमल यह था, मसीह ने फरमाया तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं, इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आता हुआ देखोगे। ये इंतहाई जरूरी पैगाम, इंतहाई बुनियादी पैगाम, इंतहाई इंपॉर्टेंट मैसेज, जिस पर आज सुबह हम गौर करने जा रहे हैं। और मसीह की आमद हमारे लिए कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई हादसा नहीं है कि कल कोई ईमानदार कह दे मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था। बाइबल मुकद्दस, खुसूसन नया अहदनामा और मसीह की तालीमात इस रोशनी के पैगाम से, रोशन कंदील से भरे हुए हैं। और मसीह ने अपनी आमद की नेचर, उसका मकसद, उसकी तैयारी की बाबत बड़ी तालीम दी है। और मसीह ने तलकीन की, यह मशवरा नहीं है, यह तलकीन है, बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। अब तो शुक्र है हम अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं, एक एक लम्हे की हमें खबर होती है। लेकिन इससे पहले अगर थोड़ी देर हम चले जाएं, तो किसी की चिट्ठी, टेलीग्राम, कोई पैगाम आता था कि आपका कोई अजीज कराची से आ रहा है। लोग तैयार रहते थे, ये नहीं पता भी कितने बजे होने, बड़ी मेहरबानी किसे करनी तो उन्हें कहना 3 बजे वाली गड्डी तैयार है, और ये पाकिस्तान रेलवे है कि 3 बजे वाली 6 बजे भी आ सकती है। लेकिन लोग ज़हनी तौर पर फिजिकली तैयार होते थे कि कोई आने वाला है,
चर्च, ईमानदारों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, लीडर्स, मेरे लिए, आपके लिए मसीह का हुक्म यह है, एडवाइस यह है, तलकीन यह है कि जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदाबंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। आज असरे हाजरा का चर्च जिस बात के लिए सबसे ज्यादा गाफिल है, जिस बात के लिए सबसे ज्यादा सुस्त है, हम लापरवाह हो चुके हैं। शायद हमने ये सोच लिया है कि बड़ी देर हो गई, हमारे अबाओ-अजदाद, हमारे वालिदैन, हम बड़ी मुद्दत से ये सुन रहे हैं यीशु आने वाला है, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। सुनिए, अगर वो आज तक नहीं आया तो ये मेरे लिए, आपके लिए है। बाइबल कहती है खुदा अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी बात लोग समझते हैं, लेकिन वो तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, आपके बारे में तहम्मुल करके ठहरा है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ये बात दुरुस्त है कि अनाजील में ना तो हमें वक्त बताया गया है, ना घड़ी की बाबत, ना साल की बाबत, ना सन की बाबत। मसीह ने बताया हो कि मैं फलां दिन फलां सन में आऊंगा, लेकिन तालीम इतनी दे दी है, निशानात की बाबत इतना बता दिया है कि आप कोई गाफिल रहने का सोच नहीं सकता अगर उसका ध्यान कलाम की तरफ लगा है, बाइबल की तरफ लगा है, और अगर उसके कान दुनिया के हालात की तरफ लगे हुए हैं। तो इस्राएल जो खुदा का घड़ियाल है, क्लॉक है, घड़ी है, उसकी हर एक सुई टिक टिक करके ये कह रही है यीशु दरवाजे पर है, जल्द आने वाला है। पेशन गोइयां पूरी हो रही है, निशानात पूरे हो रहे हैं, बस तैयार रहो। हर वक्त, हर लहजा, हर लम्हा, हर जगह मसीह की आमद के लिए तैयार रहने का हुक्म है। हमें गाफिल होने की गुंजाइश नहीं दी गई कि भूल भी जाओ तो कोई गल नहीं, इसकी गुंजाइश नहीं है। और मैं आज सुबह आपको यही याद दिलाने के लिए आया हूं कि आपका यीशु आने वाला है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब यहां पर गीत गाया जा रहा था, देखो देखो कोई आ रहा है, तो आप इतने उदास होके गा रहे थे, फेस एक्सप्रेशंस इतने डल फेक थे, मैनू लगता ही तुम चाहते हो अजे ना आवे। मैं जब छोटा था तो मेरा बाप जब कभी लाहौर किसी काम या मीटिंग के लिए जाता, वो भी एफजीए के पादरी थे, तो शाम को मैं तैयार श्यार होके मैं गेट पर रास्ते में खड़ा हो जाता। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बाप किस वक्त आएगा, लेकिन ये खुशी थी मेरा बाप आने वाला है। अगर हम निजात याफ्ता है, लहू से खरीदे गए हैं और इस मुबारक उम्मीद पर यकीन रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, तो खुश हो जाइए, खुशी से गाया कीजिए यीशु आने वाला है। पहली सदी में ईमानदार ये कहकर एक दूसरे को तसल्ली देते थे। जो पढ़े लिखे नौजवान बेटियां बेटे यहां बैठे हैं, और अगर पढ़े लिखे मेरी उम्र के भी हैं, उनके लिए भी है, इब्तदाई कलीसिया की तारीफ पढ़िए। मसीही होना इतना सस्ता नहीं जितना हमने समझा हुआ है।
तारीख बताती है कि मसीहों को पकड़ लिया जाता, नौजवान बेटों को, बेटियों को, बुजुर्गों को, औरतों को, और उनको पिंजरों के अंदर बंद कर दिया जाता, और फिर रोम के थिएटर में जहां सर्कस होती थी वहां पर उनको वहशी दरिंदों से लड़ने के लिए पेश किया जाता। तारीख ये भी बताती है कि जब वो अपने अपने पिंजरे से, केज में से निकलते थे, वो जानते थे वो मरने वाले हैं, ये वहशी दरिंदे उन्हें फाड़ देंगे, हलाक कर देंगे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इस जमीन पर जब हमारी आंख बंद होगी अगले लम्हे हम आसमान की बादशाही में इज्जत से दाखिल किए जाएंगे। तारीख बताती है कि जब वो पिंजरों से निकलते, वो रोते हुए, मातम करते हुए नहीं निकलते थे। कईयां नूं ते बड़ा रोना आउंदा, अज फिर तो आए सवेरे खाओ ना कि बेटा या बाजी या बहन उठो, एक तो छुट्टी हुंदी है कि सौन दो। कोई खुशी नहीं खुदावंद से मुलाकात के लिए, खुदावंद से मिलने के लिए कोई खुशी नहीं है। आज वो माहौल नहीं रहा कि मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ यहोवा के घर चले। यहोवा वालों के पास तो निजात का मुकाशफा नहीं था, दूर से तस्वीर देखते थे, हम निजात याफ्ता है, हमारे गुनाह मुआफ कर दिए गए हैं, उसने हम पर रूहुल कुद्स नाज़िल किया है, हम उसके लोग हैं, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। हमें कितनी खुशी के साथ उसके हुजूर में आना चाहिए। एक लफ्ज जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं और हमें करना चाहिए, हम लफ्ज बोलते हैं मारानाथा। इसका दुरुस्त लफ्ज है मारान आता। इसका मतलब है द लॉर्ड इज कमिंग सून। यीशु जल्द आने वाला है। वो वहशी दरिंदों से लड़ने वाले एक दूसरे को कहते थे हौसला रखो, हिम्मत न हारो, ये जुल्म का बाप, ये तारीकी का दौर खत्म होने वाला है, आफताब सदाकत तुलू होने वाला है, वो तुम्हारी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। और आज सुबह मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं, अगर आप दुख उठा रहे हैं, मुसीबत की चक्की में पड़े हैं, कर्ज है, बीमारियां हैं, गुर्बत है, डिस्क्रिमिनेशन है, बड़ी मुश्किलात हैं, हौसला रखो, आपका यीशु आने वाला है। फिर न मौत रहेगी, न मातम रहेगा, न आहोलाना रहेगा, न दर्द रहेगा, और वो तुम्हारी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। मसीह खुदावंद ने मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान उसके 21वें बाब की 29वीं आयत में एक बात कही तमसील कि जब तुम इंजीर के दरख्त को या और दरख्तों को देखते हो कि उनमें कोंपले फूट आई है, तो उसके लिए साइंसदान होने की जरूरत नहीं, उसके लिए कंप्यूटर आने की भी जरूरत नहीं, तो उंजी पता लग जाता है ये नेचर में आपकी है कि आप कहते हो कि गर्मी आने वाली है। तो जब मसीह की आमद के निशानात पूरे हो रहे हैं तो ये जान लो कि वो दरवाजे पर है, खुदा की बादशाही आने वाली है। बल्कि मैं ये कहूंगा कलीसिया की ईमानदारों की आपकी बादशाही आने वाली है। और मसीह ने इन लफ्जों पर मोहर कर दी और उसने कहा कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें ये टलने वाली शैवां ने टाली जानियां ने। खल्क की हुई चीजें टेम्परेरी हैं, आरजी हैं, फानी हैं, लेकिन मसीह का कलाम इलाही है, खालिक है, तख्लीक करने वाला है, ना ये बदलता है, ना इसमें कभी तब्दीली आती है, ना इसको कोई तोड़ हो सकता है। मसीह ने कहा कि मेरी बातें हरगिज़ ना, इसका मतलब है मसीह के वादे, प्रोमिसेस, तालीमात, टीचिंग्स, प्रोफेसिस, ये एवरलास्टिंग है।
इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। यीशु असली है, अब्दी है, उसकी बातें भी असली और अब्दी हैं और ये हमेशा तक रहेंगी, इनको बदला नहीं जा सकता। ये मुकम्मल तौर पर काबिल भरोसा है। जब मसीह ने कह दिया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो फिर रोज टो देखने की लोड़ कोई नहीं कि नाल ही गह के नहीं। वो एक बुजुर्ग मां थी, उनका बेटा कहीं बाहर जा रहा था, तो उन्होंने फिक्र से पूछा कि बेटा तेरे नाल कौन है? उन्हें क्या अम्मा यीशु। उन्हें क्या वो ठीक है, पर वो अपना जी भी होना चाहिए। अगर इस हद तक हमारा ईमान है तो हम नाकिस ईमान पर बैठे हुए हैं। यीशु वादों का सच्चा है। आसमान जमीन टल सकते हैं, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। और उसने कहा था मैं आऊंगा, तुम आसमान के बादलों के साथ इब्न आदम को आते देखोगे, और वो आने वाला है। क्या मैं उसकी आमद के लिए तैयार? असी आदि हो गए जे 10 बजे का टाइम दे के 1 बजे से जान दे, और बाद में उजर होते हैं, बच्चे तैयार नहीं हुए थे, बीवी की तैयारी में लेट हो गई है, उठे कहे नहीं जे डीकना। वो टाइम फिक्स है। और अभी मैं इस पर बात करूंगा। ईमानदारों, ये सिर्फ इतवार की बात नहीं है, ये सिर्फ दुआ या इबादत की बात नहीं है, ये सेमिनार की बात नहीं है। प्राइवेट लाइफ में, सोशल लाइफ में, फैमिली लाइफ में हमें हर वक्त इस तरह तैयार रहना है। अगर अभी मेरा खुदावंद आए, मैं हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकूं। मैंने 10 बातें लिखी हैं, लेकिन डरियो ना, सारियां नहीं सुनाऊंगा। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं लिखवा देता हूं, लेकिन मैं एक दफा पढ़ देता हूं। पहली बात है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। यह पहला कदम है मसीह की तैयारी के लिए, क्योंकि वहां जुर्मट घटे नहीं जाने, हजूम नहीं जाने। वहां वो जाएंगे जिन्होंने अपने गुनाह से मुंह मोड़ लिया है और वो यीशु की तरफ राग़िब हुए हैं। दूसरी बात, पाक और दीनदारी की जिंदगी गुजारी है। मुकद्दस पत्रस अपने दूसरे खत के 3 बाब की 10वीं 11वीं आयत में कहता है, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, आसमान जमीन ये बर्बाद होने वाला है। और 11वीं आयत में वो कहता है, जब ये सब चीजें इस तरह बर्बाद होने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए। तीसरी बात, रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली, मेंटली जागते रहो, खबरदार रहो। और मैंने बार बार मसीह के बयान आपके सामने पढ़े, तुम नहीं जानते कि मालिक किस वक्त आएगा, बस जागते रहो, तैयार रहो। जो मैं सबसे कहता हूं वही तुमसे कहता हूं कि जागते और तैयार रहो। चौथी बात, दुआ और खुदा की कुर्बत, यह जरूरी है। पांचवी बात, इंजील की मुनादी करो। मसीह ने कहा, जब तक बादशाही की खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में ना हो, मेरा आना मुमकिन नहीं। लेकिन जब ये मुनादी की जाएगी, तब सब कौमों के लिए गवाही होगी, तब खात्मा होगा। इंजील सुनाने के 2 तरीके हैं। एक जैसे मैं सुना रहा हूं बोल के, ये सुनाने वाले हुण बड़े ही थे, ये लिए भी शुक्र। एक तरीका यह है अपने किरदार से, अपने चाल चलन से, अपनी जिंदगी से, अपने कैरेक्टर से मसीह को पेश करना। कहना ना पे कि मसीह ने क्या, मैं वैसी जिंदगी गुजारूं
लोगों को पता लग जाए ये उंज ही जींदा जिंज मसीह ने क्या सी। और अगर ये नहीं है तो शायद ये बोलना और नोट्स और बड़ी बड़ी बातें ये बेमानी रह जाए। किसी शख्स ने कहा कि 4 इंजीलें लोगों ने बड़ी सुनी है और अब वो 5वीं इंजील हिजकिय्याह रहमत का आप में से हर एक का किरदार पढ़ना चाहते हैं। क्या वो इंजील के मुताबिक है, क्या वो मसीह के मिजाज के मुताबिक है, या मेरे पैगामात और होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैं कुछ और होता हूं। छठी बात, ईमान पर कायम रहना। मसीह ने कहा जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। 7वीं बात, खुदा से और दूसरों से मोहब्बत करना। और ये बड़ी वास्ट तालीम है। मसीह ने कहा जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से। तो हमारा चर्च में बैठकर यह हाल होता है, इधर ध्यान पै जाए ना कौन किथों आके बह गया मेरे नाल, अगले त्वार तो मैं जगह ही बदल रहा है, मैं बहते ही नहीं होते। ये असी मोहब्बत फैलाउन डे। 8वीं बात, रूह से मामूर होते जाओ। रूह का बपतिस्मा इज गुड, लेकिन यहां रुक नहीं जाना। रूह से मामूर होते जाओ, इससे पाकीज़गी आती है, इससे बदचलनी वाकई नहीं होती। और 9वीं बात है कि नए सिरे से पैदा होना। मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख। भैनों जिन्ना मर्जी खेडो जाने ना, मैं सुना के ही जाने का। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। और 10वीं बात है कि बदकारी से बचे रहो। कलाम कहता है बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना हो। सिर्फ 3 बातें नहायत जल्दी में इनमें से करूंगा। पहली बात है तौबा करो और मसीह पर ईमान लाओ। मुझे रात को बताया गया था कि 40-45 मिनट आपके हैं, तो जे को 5-4 मिनट तक पीछा हो जाए तो बर्दाश्त कर लो। जब हम अनाजील का मुताला करते हैं, मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 4 बाब 17 आयत, मरकुस के मुताबिक इंजीली बयान 1 बाब 15वीं आयत हमें बताती है कि मसीह ने अपनी मुनादी का आगाज इस पैगाम से किया, इस मुनादी से किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो, खुशखबरी पर ईमान लाओ क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तो कितना जरूरी पैगाम है जिससे मसीह ने आगाज किया। मुझे याद आ गया जब मैं स्कूल टीचर था, कुछ बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे। उनको मैंने कहना पढ़ो अलिफ बे, आंदे ने अलिफ बे नहीं होती, अलिफ बे कह भी लेना, आंदे ने कोई नहीं होती। बहुत से ईमानदार इस बुनियादी पैगाम से पहलू तही करते हैं कि एक भाई मिशन की गल ही ये तो पेंटिकास्टलां दा पैगाम है, तो फिर मान लो बाइबल भी साडी है, यीशु भी साडा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी साडा सी। उन्होंने यही मुनादी की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और उसने क्या पैगाम दिया? उसने कहा वो बियाबान में तौबा की मुनादी करता, बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता। हमने सारा कुछ बाईपास कर दिया है तो वैसे ही गुनाहों की मुआफी मिल गई है। ये पॉसिबल नहीं। खुदा अपने कलाम से इधर उधर नहीं होता। मत्ती के मुताबिक इंजील बयान के 3 बाब की पहली 2 आयत में लिखा है उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में। अच्छा, मैं इस सवेरे पढ़ के ते हैरान हो गया। हम क्या ढूंढते हैं? कोई चंगी तगड़ी क्रिश्चियन बस्ती,
कोई चंगा बड़ा पिंड क्रिश्चनों का, या कईयां दा ते पैंदे ही बुलावा इंग्लैंड, अमेरिका और डेनमार्क और पता नहीं कहां कहां का होता है। यूहन्ना कहां गया? बियाबान में मुनादी करने लगा, और ये यरदन का बियाबान था। ते उन्हें जंगल च मंगल ला लिया। फरीसी जाते थे, सिपाही जाते थे, कस्बियां जाती थी, आम लोग जाते थे, और वो पूछते थे हम क्या करें? वो कहता था तौबा करो। हम भरी बस्तियों में जाते हैं, लेकिन जुर्रत नहीं कि आज के मॉडर्न दौर के इंसान को हम ये कह सकें कि तौबा करो। हमें लगता है कलीसिया कम हो जाएगी, हमें लगता है लोग कम हो जाएंगे, आमदन कम हो जाएगी। होने दो, खुदा का काम करो, वो जंगल में मंगल तुम्हारे लिए लगाएगा। ये बियाबान में गया, रहन दो जी, इंजलियां मारनियां जी, रहन दो। वो बियाबान में गया तो मुनादी क्या की? बोलो क्या मुनादी की? थोड़ियां यही ताड़ियां ने, मैनू दसो मैं सुनाउण की गया। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही, और कलाम बताता है कि गुनाहों की मुआफी के लिए, बादशाही में जाने के लिए, सोने की सड़कों पर फिरने के लिए, नए यरूशलेम का हिस्सा बनने के लिए तौबा पहला और जरूरी कदम है। और ये बुनियादी पैगाम है, बुनियादी फैसला है। खुदावंद के आसमान पर उठाए जाने के बाद ईद पेंतिकोस्त पर जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, पतरस ने वाज किया। कलाम कहता है लोगों के दिलों पर चोट लगी। आओ फैसला करें, हम जेबों पर चोट लगाने से ज्यादा दिलों पर चोट लगाने के लिए दुआ करेंगे। उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने आके पतरस से कहा, ऐ भाइयों हम, तो उन्होंने क्या कहा? अगले तो आपको 10 बजे अपने आप गिर जाया करो, कार्ड बनवा लो, किधर ही उड़ाया करो। ये अच्छी गल है, चर्च जाना चाहिए, लेकिन उठे जिथे यीशु हो। कलाम कहता है पतरस ने कहा तौबा करो। क्या करो? और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की, गुनाह मुआफ नहीं हुए होते, ते दुआ करनगे जड़ियां मंगियां ने वो भी दे दे, जड़ियां भुल गए हैं वो भी दे दे। बेटे तो कभी बने नहीं हो, उसके साथ चलने का फैसला तो कभी किया नहीं, गुनाह से मुंह को तूने मोड़ा नहीं। और आजकल तो इतनी सहूलत हमें मिल गई है, रजाई में, कंबल में हम जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि शैतान ने ये एक खिलौना हमारे हाथ में पकड़ा दिया है। कोई पता नहीं हम कहां हैं, क्या है, लेकिन खुदा तुझे देखता है। कलाम कहता है पतरस ने कहा अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूहुल कुद्स के नाम में पाओ। ये जरूरी है। अमाल की किताब के 17 बाब की 30 आयत में लिखा है, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को, कितने आदमियों को? उसमें आप भी सारे, आप भी शामिल हैं। अब सब आदमियों को हर जगह यह हुक्म देता है कि तौबा करें। और एक बड़ी स्ट्रेंज बात मैं आपसे करने वाला हूं। यूहन्ना ने यह मुनादी की पुराने अहदनामे के नबी रसूल ये मुनादी करते रहे, मसीह ने यही मुनादी की, मसीह के रसूलों ने की। अभी मैंने बताया कि यह खुदा का हुक्म है, लेकिन मुकद्दस लूका तबीब के मुताबिक इंजील बयान 16वां बाब मेमोरियल सर्विसेज पर यह हवाला पढ़ा जाता है। अमीर और गरीब आदमी का वाक़ा, लेकिन शायद हम ध्यान से नहीं पढ़ते। अमीर इसलिए बाप अब्राहम की गोद में नहीं गया था कि वो गरीब है, और अमीर इसलिए था गड़े में नहीं गया था कि वो अमीर है। दौलत खुदा की बरकत है, और मेरी दुआ है आप में से सब दौलतमंद और आसूदा हो जाए, किसी नेमत के मोहताज ना।
लेकिन किसी के चंगे हालात देख के चंगे कपड़े, वो मीर भी तो उत्थे ही गया सी ना। ये बुनियाद नहीं थी। अभी मैं बताता हूं बुनियाद क्या थी। वो अब्राहम से कहता है, लाजर नू उन्हें पछाण लिया साथ। हम ऐसे दकियानूसी लोग हैं, इधरों जी मरदा घर का कोई, इधरों साडे लिए जिनपूत बड़िया होंदा है। यादें हैं ना, मेमोरीज हैं उसके साथ। कभी आ भी जाए खाब च, फलाना मैनू लैन आ गए जी, क्या बातें हमने बनाई। इसका मतलब है कि मरने के बाद कॉन्शियंस और पहचान हमारी रूह में बाकी रहती है। उसने लाजर को पहचाना तो ओनू बाप इब्राहिम का भी पता सच लगता, बाबा करोड़ के मजहबी आदमी से। कहता है, ऐ बाप अब्राहम, लाजर को भेज, अपनी उंगली का सिरा भुगो कर मेरी जुबान को तर करे, मैं यहां तड़पता हूं। एक चलाक बड़ा साथ है, इनू पता सी कि आसमान से आम पानी ते हैगा कोई नहीं, इत्थे ते आबे हयात है। ते एक कतरा भी लभ गया तो फिर अगों प्यास नहीं लगन लगी। कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया, वो ये गाते थे, अग दोज खांदी रहिंदी है हमेशा बलदी, चौवां पासियां तो तत्ती तत्ती लू चलदी, दिल दोज़खी दा कदी ठंडा। वो जिन्नियां मर्जी कोक पीवे, दिल दोज़खी दा कदे ठंडा ठार नहीं हुंदा, ते कदी दोज़खी नू रब दा। आज हमने वो गीत ही छोड़ दिया, क्योंकि डायरेक्ट साटा अपने आप को जो लगते है, आ क्या गीत बदल लो, तौबा तो करनी कोई नहीं। और फिर हम और गीतों में पड़ गए, और पता नहीं क्या क्या लोग गाते हैं, आंखों में मेरी आंखें हैं तेरी, किधर आया किधर गया किधर हुआ, हमें पता ही नहीं। इंजीली सच्चाइयों से नाबल्द हो चुके हैं, हमने प्रस्तिश को भी अपना रंग दे दिया है। लेकिन ये कहता है, भेज लाजर को। अब्राहम ने कहा, बेटा तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका, ते हुण तेरा एहो ही हिस्सा है जिहड़ा तैनूं मिलिया। वहां वो एक दरखास्त करता है, गौर से सुना। कहता है कि लाजर को मेरे 5 भाई हैं, उनके पास भेज दे। उसने कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं। उसने कहा, अगर कोई कब्रों में से जाए, मुर्दों में से उठ कर जाए, तो वो तौबा। बुनियाद क्या थी? अमीरी गरीबी नहीं, बुनियाद तौबा थी। क्या जीते जी कभी यीशु को दिल दिया? क्या उसके साथ चलने का फैसला किया? क्या कभी ये इकरार किया, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ये जितना जरूरी पैगाम है, उतनी ही कबाहतें भी हैं इसमें। कोई तमसीली मानी लेके आ जाता है, कोई इस्तारी मानी लेके आ जाता है, कोई फर्जी मानी लेके आ जाता है। मुश्किल तब होती है जब लिटरल मानों से, मीनिंग से हम परे हट जाते हैं। और हम क्या करें? हमारे कल्चर की, हमारे दौर की तो डिक्शनरियां भी जाहिल हैं। उर्दू जुबान की सबसे बेहतरीन डिक्शनरी फरहंगे आसफिया, वो तौबा का मतलब बताती है, गुनाह से बाज आना, अफसोस, पछतावा, अस्तगफार, नदामत। मुश्किल यह है कि ये लिखने वाले इल्म और अदब में भी मजहब घुसा देते हैं। लेकिन आओ थोड़ी देर के लिए हम गौर करें, जब यीशु ने कहा तौबा करो, तो इस वक्त उसके क्या मानी है? यूनानी जुबान में, जो बाइबल की जुबान है, इसके लिए लफ्ज है मेटानोया, फिर एक लफ्ज है मेटानोयो। इन दोनों के मानी है टू रिपेंट, बाज आना, मुड़ जाना किसी काम से। फिर इसका मतलब है चेंज माइंड, ये है असल मतलब जहन का। इन्हीं गल ध्यान ना सुन लो, अगो कहोगे तो सुनावांगा, वरना नहीं।
चेंज माइंड, जहन का बदल जाना। फिर इसका मतलब है चेंज द इनर मैन, बातिन के शख्स का बदल जाना। गड्डी का ड्राइवर बदल जाए तो बड़ा फर्क पैदा। अगर अंदर का इंसान जागता रहे, मसलूब ना हो, गुनाह का शख्स, पुरानी नेचर जिंदा रहे, वो गुनाह पर उकसाएगी। लेकिन ये अगर अंदर का शख्स जो है वो बदल जाए और मेरे अंदर यीशु मसीह के लिए, खुदा के लिए कबूलियत आ जाए, एक्सेप्टेंस आ जाए, ये बुनियादी फर्क पैदा करती है। लफ्ज मेटानोया या मेटानोयो, ये दो यूनानी अल्फाज का मुरक्कब है। मेटा का मतलब है टू चेंज, बदलना, और नेओस अक्ल, टू चेंज द माइंड, थिंक डिफरेंटली। ये भी तौबा, जिस तरह मैं पहले सोचता था अब मेरी सोच बदल जाए, मैं गुनाह से कराहियत करना शुरू कर दूं, मैं नापाकी और तारीकी से दूर चला जाऊं, पीछे हट जाऊं। जब मैं आज सुबह यहां आ रहा था, मैं गुम गया। मैं हाफजाबाद रोड आने की बजाय मैं शेखुपुरे रोड चला गया। वहां तारा वाले बाजार में मैं ढूंढ रहा था और मुझे एहसास हुआ, गौर से सुनिए, कि मैं खो गया हूं, मैं गलत हूं। और अगर मुझे ये एहसास ना होता तो तुहां इथे गाई जाना ही, तो मैं उथे गाई जाना ही। जहन का बदलना, सोच का बदलना, कलाम की चोट और रूहुल कुद्स की जुम्बिश से मेरा जहन गुनाह, शैतान, दुनिया, तारीकी के हवाले से बदल जाए और वो मसीह के लिए और उसकी बादशाही और उसके काम और उसकी सलीब की तरफ राग़िब हो जाए। मुशर्रफ बेटे की कहानी आप में से कितनों ने सुनी है? क्या हुआ था? एक दिन उसने होश में आकर कहा, होश ना आती तो चेंज कोई नहीं सी होना। होश ये आई कि यार मैं इतने धक्के खांदा फिरना, मेरे बाप के घर में कितने ही मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है। आज सुबह मेरी दुआ है हमें से हर एक को होश आ जाए, हमें एहसास हो जाए, हम रियलाइज कर लें कि मैं बाप के घर से बाहर हूं, बाप की मोहब्बत से दूर हूं, मैं दुनिया में और दुनिया की रंग रलियों में मैं खो गया हूं, दुनिया की महफिलों के अंदर खो गया हूं, मेरा लिबास बदल गया, मेरी पहचान बदल गई, कोई रोटी नहीं देता, मैं सूरों की फलियां खाने की कोशिश करता, वो भी नहीं देते। एक दिन उसने होश में आकर कहा, ये तौबा है, होश आ जाए, मेरा जहन बदल जाए। जेड़ा बंदा पहले भज भज गुनाह मल जाता सी, फिर उन्होंने कहो भी आ चलिए, वो आखे नहीं ये साढ़े वाली महफिल नहीं, साडियां महफिलां होर ने, साडियां महफिलां सोड़ी थले लगती हैं, रूहुल कुद्स की जुम्बिश के नीचे लगती हैं। अब मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं, ये तौबा है। इसके बाद नतीजा ये है, यूहन्ना ने कहा तौबा के मुआफिक फल। रोज रोज तौबा तौबा बंदा खोचड़ा भी हो जाता है। तौबा करो और तौबा के मुआफिक, और फल क्या है? तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ, मसीह पर ईमान लाओ। तौबा यह है कि अपना चेहरा गुनाह की तरफ से, शैतान की तरफ से मोड़कर आसमानी बाप की तरफ कर देना। कोई आदमी किसी गंदे जौहर में, छपड़ी में बैठा हो ते आले दुआले वाले नूं आखे बड़ा गंद जे इत्थे ना, तो आप उथों निकले ही ना, तो उथे करी जाए तौबा तौबा बड़ा गंद है, इससे कोई फायदा होगा?
प्रैक्टिकल कदम यह है, जब उसको होश आ जाए मैं गंद में हूं, आज सुबह खुदा ने मुझे भेजा है ये बताने के लिए कि गुनाह की मजदूरी मौत है, बाप के घर से दूर मोहताजी है, गुलामी है, कुछ नहीं है। तेरा बाप तेरा इंतजार कर रहा है, उसने तौबा के दरवाजे तेरे लिए खोले हुए हैं और वो इंतजार कर रहा है। तौबा करो, खुशखबरी पर ईमान लाओ, खुदा की बादशाही करीब आ गई है। बाकी बातें पादरी साहब आपसे कर लेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आइए अपने साथ छुपाएं।